Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic which is I am going to discuss with you is spina bifida. Spina bifida को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कहते हैं. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और स्पाइना बाइफिडा इज़ अ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट और इस डिफेक्ट में क्या होता है, देयर इज़ अ डिफॉर्मिटी इन द स्पाइन एंड द स्पाइनल कॉर्ड और उस डिफॉर्मिटी उस डिफेक्ट की वजह से वहाँ पे गैप फॉर्म हो जाता है इन बिटवीन द वर्टिब्रास और उस गैप के थ्रू हमारे पास जो भी इंटरनल जो मेनिंजेस हैं या नर्व्स एंडिंग्स हैं ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो वहाँ से प्रोट्रूड हो जाती हैं उस गैप से और वो हमें विजुलाइज होते हैं बेबी के बैक साइड पे इन अ फॉर्म ऑफ सैक. और ये डिफेक्ट कितना सीवियर होता है ये डिपेंड करता है कि उस गैप के थ्रू कितना इंटरनल जो नर्व एंडिंग्स हैं मेनिंजेस हैं वो इन्वॉल्व होके प्रोट्रूड होके उस सैक में आते हैं. इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से होता है. देयर इज़ अ टू क्लासिफिकेशन, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा और सिस्टिका. सो सिस्टिका के फर्दर क्लासिफिकेशन होती है मेनिंजोसील एंड मेनिंजोमाइलोसील. और जो सिस्टिका की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं बच्चे में इन कंपैरिजन टू स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा. सो इन डिटेल मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्पाइना बाइफिडा. Start with the topic spina bifida. Definition: spina bifida is a developmental congenital disorder caused by the incomplete closing of the embryonic neural tube. So इसमें क्या होता है, medically it refers to a neural tube defect which is characterized by incomplete closure of neural tube and vertebra. Spina bifida occurs in about 1.5 per 1000 live births in India and the incidence rate is much higher. Some vertebra overlying the spinal cord are not fully formed in case of the spina bifida and remain unfused and open. If the opening is large enough, जो जहाँ पे ये स्पाइना बाइफिडा का ओपनिंग है, जहाँ पे ये डिफेक्ट हुआ है जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं या ओपन स्पाइन भी कहते हैं, तो वो जो ओपनिंग है, इफ़ दैट ओपनिंग इज़ लार्ज इनफ, वो इतनी बड़ी है कि वो अलाउ करता है कि कुछ एक पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से प्रोट्रूड हो जाता है थ्रू दैट ओपनिंग इन द बोन्स. तो दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड द स्पाइना बाइफिडा और इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर होगी जो मैं अभी आपको बताऊँगी आगे. एंड देयर मे और मे नॉट बी अ फ्लूइड फील्ड सैक सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइना बाइफिडा की क्लासिफिकेशन जो आती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो यहाँ पे प्रोट्रूजन हुआ है वो उस प्रोट्रूजन में फ्लूइड फील्ड सैक अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. Incidence, as I told you that spina bifida is one of the most common birth defect with an average worldwide incidence of 1 to 2 cases per 1000 births, but certain population have a significantly greater risk. And myelomeningocele, which is one of the classification of the spina bifida, is the most significant and common form, and this leads to disability in most affected individuals. This condition is more likely to appear in females and the cause for this is totally unknown. Causes for this spina bifida, first is maternal diabetes, and if the mother during the pregnancy she is insulin dependent diabetes mellitus and taking some certain drugs during the pregnancy, then there may be the chances that the fetus growing inside that mother having this spina bifida and family history भी होता है. There is a chances, ज़्यादा chances बन जाते हैं in case of second sibling that affect 5% over the 1000 live births. And obesity अगर है मदर को और increased body temperature from fever or external sources such as hot tubs and electrical blankets may increase the chance of delivery of a baby with the spina bifida. And medication such as some anticonvulsants अगर मदर ले रही है and a pregnant woman taking valproic acid have an increased risk of having the children with the spina bifida. और genetic basis पे भी होता है. And folic acid deficiency most important. Embryological study अगर हम इसका करें, so spina bifida is caused by the failure of the neural tube to close
ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनसाइड द मदर वूम। जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है टू फॉर्मिंग न्यूरल, जो हमारा जो न्यूरल कैनाल है, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रा का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर कुछ वहाँ पे डिफेक्ट रह जाता है इन द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो उस टाइम पे जो है वो बच्चे को स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस बन जाते हैं। एंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब अकर्स अराउंड द 23rd and 27th day after fertilization. Types spina bifida malformations fall into 3 categories. As I told you, these are the types or classification आप इसको बोल सकते हैं. So first हम बोल सकते हैं spina bifida, और उसकी classification में क्या क्या आएगा? Spina bifida occulta and spina bifida cystica with meningocele, और spina bifida cystica with myelomeningocele. सो आप इसको स्पाइना बाइफिडा देन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑकल्टा एंड सिस्टिका. ऑकल्टा सिंगल ही है, उसके अंडर कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है. सिस्टिका के अंडर 2 क्लासिफिकेशन आता है, वन इज मेनिंजोसील एंड अनदर इज माइलोमेनिंजोसील, या मेनिंजोमाइलोसील भी हम इसे कह सकते हैं. द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द मालफॉर्मेशन इज द लंबर एंड द सैक्रल एरिया. जो डिफेक्ट होने वाला है स्पाइनल कॉर्ड का, वो जो मोस्ट कॉमन जो लोकेशन है इस मालफॉर्मेशन का, वो है लंबर एंड सैक्रल एरिया ऑफ द न्यूनेट, फीटल, इन्फेंट, जो भी आप बोलना चाहें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में जो हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी जो डिलीवर होके आया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन या टाइप्स उन्होंने बताया है. A, B, C और D एक अलग से उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. सो फर्स्ट हमारे पास स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोसील एंड स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोमाइलोसील या माइलोमेनिंजोसील. तो ये जो है वो सिस्टिका की 2 क्लासिफिकेशंस हैं, मोस्टली 3 ही होता है. और जो यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है इस इमेज में, तो वो है स्पाइना बाइफिडा विद माइलोस्काइसिस. तो ये लास्ट D की क्लासिफिकेशन में आता है. ये एक्सट्रीम लेवल पे है कि मैक्सिमम हर एक चीज़ जो है वो उस एक ओपनिंग से बाहर आ जाती है. और यहाँ पे सैक जो है वो रप्चर हो जाता है. यूजुअली माइलोस्काइसिस में सैक रप्चर हो जाता है. आप इनकी इमेजेस में देख सकते हो. A, B स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा है. A यहाँ पे ऐसा कोई प्रोट्रूजन नहीं हुआ है, कोई सैक हमें बाहर नहीं दिखाई दे रहा है. B में हमें सैक दिखाई दे रहा है अलॉन्ग विद द C, बट B और C में सैक ऊपर से लाइन आप देख सकते हो पूरा क्लोज है. और D में देखो वहाँ पे ये ब्रेक हो चुकी है लाइन, दैट मीन्स जो हमारा जो सैक है वो रप्चर हो चुका है. बाकी डिटेल में अभी आपको बताती हूँ आगे. सो स्टार्ट विद द स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा. ऑकल्टा जो वर्ड है इन लैटिन फॉर हिडन के लिए हम इसको वर्ड यूज़ करते हैं, हिडन. सो स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा मीन्स हिडन है, डिफेक्ट जो है वो हिडन है, बाहर से हमें अपीयर नहीं हो रहा है. दिस इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा. इतना सीवियर नहीं है, इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसीलिए इसको माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा कहा गया है. एंड इन ऑकल्टा द आउटर पार्ट ऑफ सम ऑफ द वर्टिब्रा इज नॉट completely closed. The splits in the vertebra are so small that the spinal cord does not protrude. तो इतना माइनर डिफेक्ट होता है कि कुछ भी चीज़ वहाँ से प्रोट्रूजन नहीं हो पाता उस एक डिफेक्ट से. और जो स्किन होती है उस एक साइड के ऊपर जहाँ पे ये ऑकल्टा का हिडन डिफेक्ट जो है, तो उस एक साइड के ऊपर जो स्किन होती है वो नॉर्मल ही हमें अपीयर होती है. बस वहाँ पे थोड़ा सा हेयर ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हमें लगेगी और एक डिम्पल जैसा मार्क होता है, और उसे हमें इतना नोटिस नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग टाइम पे. एंड द इंसिडेंस ऑफ स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा is approximately 10% of the population, and the most people are diagnosed incidentally from spinal x-ray. कभी later on in future कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको जब कभी एक्सरे किया जाता है स्पाइनल एक्सरे, तब वो कभी बाई चांस किसी एक इंसिडेंट के अंडर डायग्नोज किया जाता है कि अच्छा इन्हें तो स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा है. तो पहले हमने किया स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, और नेक्स्ट हम करेंगे मैंने बताया था कि स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की 2 क्लासिफिकेशन हमारे पास आती हैं. वन इज़ मेनिंजोसील एंड अनदर इज़ मेनिंजोमाइलोसील, और माइलोमेनिंजोसील किसी भी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में मेनिंजोसील में क्या होता है,
फ्लूइड फील्ड सैक जो है वो प्रोट्रूड हो रहा है इन द बैक यूजुअली, एंड नर्व यूजुअली जो है वो नर्व सप्लाई इतना अफेक्ट नहीं करती है इन केस ऑफ मेनिंजोसील। और जो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी जो होगी बच्चे में वो डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन पे वर्टिब्रल के आसपास ये डिफेक्ट अराइज हुआ है, बट लेस सीवियर देन द मेनिंजोमाइलोसिल, बिकॉज आप मेनिंजोमाइलोसिल की इमेज में देख सकते हो। मेनिंजोमाइलोसिल में यहाँ पे क्या हुआ, अलॉन्ग विद द प्रोट्रूडेड सैक के साथ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट भी हुआ है ड्यू टू नर्व इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हुआ है। एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट इंक्लूड्स flaccid paralysis और sensory deficient in the trunk and the legs corresponding to the involvement segment कौन सा हुआ है, spinal cord का। and involvement of bladder and bowel causes urinary and fecal incontinence हो सकता है, facial weakness, swallowing difficulty along with the laryngeal stridor, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे present हो सकती हैं। So myelomeningocele, this type of spina bifida often results in the most severe complications में आएगा, and in individuals with myelomeningocele the unfused portion of the spinal column allows the spinal cord to protrude through an opening, and the meningeal membranes that cover the spinal cord form a sac and enclosing the spinal elements, and spina bifida with माइलोकाइसिस जो मैंने कहा था कि एक लास्ट जो इमेज में मैंने आपको दिखाया था कि डी वाले में कि वहाँ से वो सैक रप्चर हो जाता है, तो इस वो बहुत ही मोस्ट सीवियर फॉर्म है मेनिंजोमाइलोसिल की भी, क्योंकि इन दिस टाइप द इन्वॉल्व्ड एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्लैटेंड प्लेट लाइक मास ऑफ द नर्वस टिश्यू विद नो ओवरलाइंग मेम्ब्रेन, मीन्स सैक वहाँ पे रप्चर हो जाता है और जस्ट एक टिश्यू की तरह, एक मास ऑफ टिश्यू की फॉर्म में वो बाहर निकल के आता है, तो वो बिल्कुल लास्ट फॉर्म पे आ जाता है। और the exposure of these nerves and tissues make the baby more prone to the life-threatening infections such as meningitis. So यहाँ पे आप देख सकते हो meningomyelocele. The protruded portion of the spinal cord and the nerves that originate at the level of the cord are damaged or not properly developed. As a result, जिसकी वजह से there is a usually some degree of paralysis and loss of sensation below the level of the spinal cord defect. जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे यूजली ट्रंक और लंग्स जो भी एक स्पाइनल कॉर्ड का जो सेगमेंट उसमें इन्वॉल्व है उसके डिफेक्ट हमारे पास देखने को मिलेंगे। ब्लैडर बॉवल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फिजिकल साइन जो इंडिविजुअल में देखे जाएंगे, सो ऑर्थोपेडिक अबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं। जिन्हें स्पाइना बाइफिडा होता है उन्हें क्लब फुट और हिप डिसलोकेशन की प्रॉब्लम भी नोटिफाई किया जाता है उन बच्चों में। एंड ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इनकॉन्टिनेंस एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड पुअर रीनल फंक्शंस, pressure source and skin irritations, abnormal eye movement. In case of 68% of the children with spina bifida have an allergy to latex, and paralysis हो सकता है। Scoliosis, back pain, partial or complete lack of sensation, and weakness of the hips, legs or feet of a newborn. Other symptoms may include hair at the back part of the pelvis called the sacral area, जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के केस में देखने को मिलता है। डिम्पलिंग ऑफ द सैक्रल एरिया, ये भी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के केस में देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग विच कैन लीड टू चोकिंग, हॉर्सनेस, ब्रेथ होल्डिंग एंड प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, ये सब आएगा मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील के फर्दर केसेस में। एंड न्यूरोलॉजिकल अगर हम देखें सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में, सो मैनी इंडिविजुअल्स विद स्पाइना बाइफिडा हैव एन एसोसिएटेड अबनॉर्मलिटी ऑफ द सेरिबेलम कॉल्ड द एर्नोल्ड कैरियाई malformation, and in affected children individuals the back portion of the brain is displaced from the back of the skull down into the under neck, तो ये डिफेक्ट उनमें होता है। और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो उस एक न्यूरोलॉजिकल डैमेज में इन्वॉल्व हुए होंगे, सो ड्यू टू दैट जो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ डिफ़िकल्टी इन सम इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनिशिएटिंग एंड वर्किंग मेमोरी में डिस्टर्बेंस होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब्स्ट्रैक्शन, विजुअल प्लानिंग में ऑल्सो भी इम्पेयर्ड। Children with spina bifida and shunted hydrocephalus have higher rates of, ये हमारे पास आते हैं अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनमें। एंड एकेडमिक स्किल्स,
Individuals with spina bifida may struggle academically, especially in the subjects of mathematics and reading. In one study, 60% of the children with spina bifida were diagnosed with a learning disability. सोशल कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें कंपेयर टू टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रंस, जो और बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में यूथ विद स्पाइना बाइफिडा मे हैव फीवर फ्रेंड्स एंड स्पेंड लेस टाइम विद द पीयर्स. डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस बच्चे को स्पाइना बाइफिडा है, सो स्टार्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग के टाइम पे ही हमें इसे आइडेंटिफाई करना चाहिए. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन यूजुअली बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बाय टेस्टिंग द मदर्स ब्लड टेस्ट हम ले सकते हैं, और फिटल जो अल्ट्रासाउंड है उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर इंक्रीज लेवल होता है मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का, सो समवेयर इट give us an indication that the child is may having spina bifida or neural tube defect. And prevention के लिए dietary supplementation with the folic acid has been shown to be helpful in reducing the incidence of spina bifida. And sources of folic acid include whole grains, fortified breakfast cereals, dried beans, leaf vegetables and fruits. It is recommended that any woman considering becoming pregnant take 0.4 mg of folic acid a day. Pregnant women need 1 mg per day. So जो भी अगर प्लानिंग पे हैं एंड एनी वुमेन वांट टू बी प्रेग्नेंट इन अपकमिंग टाइम, सो शी हैज़ टू बी टेक नियर अबाउट द डोज ऑफ फॉलिक एसिड दैट इज़ 0.4 mg. जस्ट बिकॉज मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हमारे पास नियर अबाउट 27 to 28 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, तो वो वहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं. उस टाइम पे न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है. तो मीन वाइल कभी कभी मदर्स ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती कि वो प्रेग्नेंट है, उससे पहले ही उनका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर उनका ये सब डेफिशिएंसी रहती है बॉडी में. सो देयर इज़ अ नीड टू टेक द फॉलिक एसिड फ्रॉम द कंसेप्शन टाइम. एंड प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू बी, अगर किसी को आइडेंटिफाई होता है दैट दिस मदर इज़ प्रेग्नेंट, तो उन्हें उस टाइम पे उनका जो फॉलिक एसिड का जो डोज है वो 1 mg पर डे होना चाहिए. एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स नर्व रूट्स आर पुट बैक inside the spine and covered with meninges. And in addition, a shunt may be surgically installed to provide a continuous drain for the excess cerebrospinal fluid which is produced in the brain as happens with the hydrocephalus. तो in case of spina bifida अगर उसके साथ उसको hydrocephalus की कंडीशन भी है बेबी में, तो उस टाइम पे हम जो है वो शंटिंग करके उसको थोड़ा सा वहाँ से cerebrospinal fluid को शिफ्ट कर सकते हैं, विच इज़ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई हाइड्रोसेफलस का जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है. सो शंट मोस्ट कॉमनली ड्रेन इनटू द, जो हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं, चाहे हम उसको पेरिटोनियल कैविटी में डालें, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम एब्डोमिनल कैविटी में डाल रहे हैं, जिस भी एक रीज़न पे हम डालेंगे तो वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प होगी. देन monitor growth and development of the bones, muscles and joints, treat and evaluate nervous system. जो इसके इश्यूज होंगे उनको हम इवेल्यूएट करेंगे, सच एज कोई सीजर डिसऑर्डर्स है तो उनको हम इवेल्यूएट करके फिर ट्रीट करेंगे. फिजिकल थेरेपी और स्पीच थेरेपी लेटर ऑन जैसे से बच्चा बड़ा होगा तो हम उन्हें दे सकते हैं. इमीडिएट केयर में प्लेस द चाइल्ड इन प्रोन पोजीशन, क्योंकि वो उसका सैक होगा तो सुपाइन पोजीशन पे डालेंगे तो वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो बेबी को हमें प्रोन पोजीशन पे रखना है. कवर द अफेक्टेड एरिया विद द स्टेराइल गॉज पीस डिप्ड इन द नॉर्मल सलाइन, और ताकि उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे. एंड मॉनिटर फॉर द एसोसिएटेड डिफेक्ट क्या है साथ में अलॉन्ग विद द स्पाइना बाइफिडा. जैसे मैंने कहा कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्लब फुट हिप डिसलोकेशन या हाइड्रोसेफलस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है. और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट में जैसे कैथेटर्स, जैसे मैंने कहा कि अगर मेनिंजोमाइलोसील है तो उसका जो भी एरिया जो भी नर्व डैमेज की वजह से अफेक्ट हुआ होगा, जो भी सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड उसमें इन्वॉल्व हुआ होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ब्लैडर बॉवल जो है वो उसको इनकॉन्टिनेंस रहेगा, क्या उसको कोई स्वेलिंग डिफ़िकल्टी रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कैथेटर्स भी प्लेसेस हो सकते हैं, ब्रेसेस फॉर लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है. और हाई फाइबर डाइट एंड एंटीबायोटिक्स में भी यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट द इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. कॉम्प्लिकेशंस, डिफ़िकल्ट डिलीवरी,
with the problems resulting from a traumatic birth, including cerebral palsy and decreased oxygen to the brain, and frequent urinary tract infections, hydrocephalus, loss of bowel or bladder control, meningitis, and permanent weakness or paralysis of the legs. So this is all about my today's topic, स्पाइना बाइफिडा. आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही और पीडियाट्रिक नर्सिंग के टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एसएस पीडियाट्रिक्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस. थैंक यू.